I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. بھارت نے کوئی اشتعال انگیزی کی تو پہلے سے سخت اور فیصلہ کن جواب دیں گے. بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں, نیوکلیئر انوائرمنٹ میں جنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب. کہا مارکہ حق میں پاک فوج نے ملٹی ڈومین وارفیئر کی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. مسلح افواج نے رافیل طیارے گرائے اور S-400 دفاعی نظام سمیت دشمن کی متعدد بیسز کو نشانہ بنایا. پاکستان نے ایسے دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی جو اپنی گمراہ کن بالادستی کے غرور میں مبتلا تھا. ہم آپ کی بیان بازی سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے. قوم کو یقین دلاتا ہوں ہم اپنی سرزمین کا ایک انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے. آنے والی کشیدگی خطے کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث ہوگی. India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Will surely defeat this menace as well. Like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be raised to dust. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو لگام دے. پاکستان کے خلاف ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں کہ اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے. دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں. نوجوان ڈس انفارمیشن کا شکار نہ بنے. ہم شہداء اور ان کے اہل خانہ کے بے حد شکر گزار اور مقروض ہیں جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں. India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کو انسانیت کے لیے بدنما داغ قرار دے دیا. سپہ سالار نے کہا فلسطین کی آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے اصولی موقف پر قائم ہے. پاکستان کشمیر پر بھی اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی سرپرستی میں جاری دہشت گردی، جبر اور مظالم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. کشمیری عوام کب تک ظلم اور جبر کا شکار اور حق خود ارادیت سے محروم رہیں گے؟ دنیا کے متعدد تنازعات کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں اور لیڈرشپ قابل تعریف ہے. امن، سلامتی اور ترقی کے مفاد کے لیے عالمی اور علاقائی رہنماؤں کے ساتھ تعلقات کو مزید پروان چڑھائیں گے. بھارت بھی بین الاقوامی قوانین، برابری اور باہمی احترام کے اصولوں کے مطابق مسائل حل کرے. پاکستان خطے میں ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر ابھرا. عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوئے. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا سفارتی میدان میں پاکستان کی کامیابیوں کا فخر سے تذکرہ. کہا سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے. حرمین شریفین کا دفاع پاکستانی عوام اور افواج کے لیے منفرد اعزاز ہے. پاکستان نے مستقل طور پر خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کا ثبوت دیا. غزہ میں امن کے حالیہ اقدام کو آگے بڑھانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا. پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا. چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے. امریکہ کے ساتھ مضبوط اور بڑھتے ہوئے تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا ایک حوصلہ افزا اور خوش آئند پیش رفت ہے.
पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में 152वें PMA लॉन्ग कोर्स की पुरवकार पासिंग आउट परेड, 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स भी पास आउट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पासिंग आउट परेड का मुआयना, आला कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाज़ात भी तकसीम किए। सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुश्तबा को एजाज़ शमशीर, सीनियर अंडर ऑफिसर जुहैर हुसैन को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा गया। जूनियर अंडर ऑफिसर तिकराज को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज मेडल, जबकि जेंटलमैन कैडेट सैयद हाशिर हसन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्समैन गोल्ड मेडल से नवाजा गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की छड़ी कोर्स अंडर ऑफिसर शाहिर अली को दी गई। कमांडेंट ओवरसीज मेडल लेडी कैडेट्स की कोर्स स्पोर्ट्स सार्जेंट जन्नतल मवाद को दिया गया। सदर ट्रंप पाक अफगान जंगबंदी कराने के लिए तैयार, कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी कराना पड़ी तो ये मेरे लिए बहुत आसान है, मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी से पूरी तरह आगाह हूँ। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहा है। एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का तस्करा करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा है, मैंने पाक भारत जंग रुकवाकर लाखों जानें बचाई। मैं नोबेल इनाम के लिए नहीं बल्कि जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूँ। गुड और बैड तालिबान की थ्योरी हमेशा के लिए खत्म हो गई। पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो उधार नहीं रखेंगे, मैली आंख से देखने वाले को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब शायद स्कोर 6-0 से ज्यादा हो। अफगानिस्तान का हमेशा साथ दिया, अफसोस उस तरफ से तकलीफ ही मिली है। TLP ने जब भी एहतजाज किया तशद्दुद और हलाकतें हुई, किसी को इंतशार और फितना नहीं फैलाने देंगे। एक तरफ हमारे अफसरान को शहीद करते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का कहते हैं। नून लीग की सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने की कोई पॉलिसी नहीं। सानहाए कारसाज पाकिस्तान की तारीख का अलमनाक दिन। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस लौटी। जियालों की बड़ी तादाद ने शानदार इस्तकबाल किया। काफिला कारसाज के मकाम पर पहुंचा तो इलाका धमाकों से गूंज उठा। एक के बाद दीगरे होने वाले धमाकों में दर्जनों कारकुन शहीद, सैकड़ों जख्मी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की यादगार पर आमद फूल रखे, कहा सानहाए कारसाज आज भी हमारे जहनों में जख्म की मानद ताज़ा है। शहीद बीबी गरीब आवाम की आवाज़ थी, जियालों की कुर्बानियाँ थीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सानहे कारसाज की बरसी पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत। जमहूरियत के शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमारी जिद्दोजहद शोहदा की कुर्बानियों से तकवीत पाती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 18 अक्टूबर 2007 का दिन हमेशा के लिए कौम की रूह पर नक्श हो चुका। आमरीत और दहशतगर्दी ने गठजोड़ करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कारवां पर होलनाक हमला किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कहा कि कारसाज का मकाम पाकिस्तान में जमहूरियत की लहू रंग जिद्दोजहद का गवाह है। बुज़दिल दुश्मनों ने जमहूरियत पर घात लगाकर हमला किया, मगर वो जमहूरियत के सफर को रोक ना सके। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कारसाज के शोहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद कराची में होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में मुजव्वज़ा इस्लाहाती हुकूमती एजेंडे और मुतवक्के आइनी तरामीम पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी पर हतमी फैसला करेगी। नून लीग के साथ मुआहदे पर अमल दरामद और पंजाब के मामलात पर भी गौर होगा। पहली मरतबा 18 अक्टूबर का जलसा मनसूख करके CEC इजलास बुलाया गया है। वजारत दाखिला में बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले करने की तकरीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चाबियाँ IG खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा KP पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़रूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया गया। आला अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतालिक भी गौर। इजलास का बाकायदा एलामिया कुछ देर बाद जारी किया जाएगा।
सिंध हुकूमत ने सरकारी जामियात में फ़ीसों में इजाफा हुकूमती मंजूरी से मशरूत कर दिया। जमात नहम से 12वीं तक नया ग्रेडिंग सिस्टम लाने पर भी गौर। वज़ीर जामियात इस्माइल राहू ने कहा, विफाक जामियात की ग्रांट में इजाफा नहीं कर रहा। ग्रांट में कमी के बाइस सरकारी जामियात माली दबाव का शिकार हैं। फौरी ग्रांट में इजाफा किया जाए। सिंध हुकूमत तालीम को क्वालिटी के साथ आम करने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर ट्रंप रूस यूक्रेन जंग ख़त्म कराने के लिए पुरुमीद। कहा, अगर दोनों फरीक लचक दिखाएं तो जंग का खात्मा मुमकिन है। हंगरी में सदर पुतिन से मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की भी राबते में रहेंगे। रूस और यूक्रेन में बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान नहीं। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, सदर ट्रंप की मदद से जंग रोकी जा सकती है। मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप का सदर ज़ेलेंस्की के लिबास पर तबसरा, कोट को स्टाइलिश करार दिया। इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा में तैयारे से गाड़ी पर हमला, एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद, 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। इसराइली जारहियत का निशाना बनने वाले अफराद अल-ज़ैतून से लौट रहे थे। हमास के जंगबंदी के बावजूद इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा, इसराइल दानिस्ता तौर पर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन गैर ज़रूरी फरमाइशें नहीं मानेंगे। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा, जब हम पर हमला हुआ उस वक्त भी हम अमरीका के साथ मुज़ाकरात ही कर रहे थे। हम किसी के साथ भी मुज़ाकरात कर सकते हैं, मगर सेहोनी रजीम के साथ कोई बात नहीं होगी। कनाडा में इस्लामोफोबिया का खौफनाक वाक़या। ओशवा में इस्लामिक सेंटर के बुजुर्ग रहनुमा को मस्जिद के करीब कत्ल कर दिया गया। 80 साला इब्राहिम को नमाज के बाद घर जाते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लाश करीबी रिहायशी इलाके से मिली। चीन का फौज में बदउनवानी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 2 आला तरीन फौजी कमांडर्स और 7 सीनियर अफसरान बरतरफ होने वालों में चीनी फौज के नायब सरबराह जनरल हीवे डोंग और साबिक नेवी चीफ एडमिरल मिया हुआ शामिल। बरतरफ अफसरान पर संगीन माली बदउनवानी और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के इल्जामात हैं। और अफगानिस्तान के इनकार के बावजूद ट्राई नेशन T20 सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। अफगानिस्तान की दस्तबरदारी के बाद PCB का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। PCB का प्लान B पर गौर। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से राब्ता कर लिया। पाकिस्तान में ट्राई सीरीज 17 से 29 नवंबर तक शेड्यूल्ड है। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं।